Is anybody unmuted? Please mute yourself, better. So now we have discussed that there are 26 letters in the English alphabet, and when we join some letters, they form a word, right? So when we join some words, then what does it become? दिया तो नहीं उनके Mute yourself, everybody. 26. Because you are creating disturbance for me. Yes. Okay. So this becomes जब हम बहुत सारे words को join करते हैं तो obviously उसका जो group बन जाता है उसको group of words कहते हैं. Now I'll show you a few words. Drink cat's milk. So these are, how many words are these? 1, 2 and 3. These are 3 words. That means this is a group of words. ये words का एक group है. 3 words का group है. Now tell me one thing. Are these group of words making any sense? जब आप इसे पढ़ते हैं drink cat's milk. क्या ये group of words को आपको meaning convey कर रहा है? Just nod your head like this. I'll be able to see. Yes. नो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसको जब हम पढ़ रहे हैं हमें कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा है राइट नहीं आ रहा ना नाउ आई रीअरेंज दीज इन्हें दोबारा से इन्हीं तीनों वर्ड्स को यूज करके मैंने रीअरेंज करूंगी एंड आई से कैट्स ड्रिंक मिल्क नाउ कैट्स ड्रिंक मिल्क यही वाले 3 वर्ड्स मैंने दोबारा लिए हैं इनको मैंने दोबारा अरेंज करके एक ऑर्डर में इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया और अब हमारा जो वर्ड्स हैं वो बन गए कैट्स ड्रिंक मिल्क नाउ आर दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग एनी सेंस क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई सेंस बना रहा है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स आई एम वेटिंग फॉर यू यस ऑफ कोर्स दिस इज सो अब क्या इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं सेंटेंस में कैन आई कॉल दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ सेंटेंस Yes, and now I'd like somebody to unmute and tell me, Bhavya Lekhi. Can you please unmute yourself? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Is this a sentence now? Yes, ma'am. Yes, is it a sentence? Okay, Kashvi, now you unmute yourself. Is it a sentence? No. No. Why, Kashvi? Ma'am, the cat का first letter है वो capital नहीं आया और उसके last में full stop भी नहीं आया है. Excellent, very good. Yes, Bhavya, this is still, it is not, we cannot call it a sentence. Why? क्योंकि इसका मीनिंग तो कंप्लीट आ रहा है इन वर्ड्स का मीनिंग तो कंप्लीट है लेकिन ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा यहाँ कैट्स कैपिटल से सी नहीं आ रहा एंड वी हैव नॉट पुट एनी पंक्चुएशन मार्क हियर यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क ही नहीं डाला हमने इफ आई राइट इट अगेन आई से कैट्स ड्रिंक milk right and I put a full stop here right now cats drink milk मैंने इसी को दोबारा लिखा है but this time what I have done I have made the first letter capital and I have also put a punctuation mark at the end I'm not mute yes beta I'm not mute I'm not on mute okay so यहाँ पे अब हम इस group of words को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है sentence hai. Why? Because the first letter is capital, there is a punctuation mark at the end, and this group of words is giving us a complete sense. That's why now we can say that this is a sentence. Clear to everybody this much? Is it clear this much? Right. So अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से हम sentence को अगर हमने define करना है कि sentence क्या होता है तो हम क्या बोल सकते हैं? We can say what is a sentence? अगर हमसे कोई पूछता है sentence क्या है, what would be the first point for that? इसका first point होगा sentence is a group of
सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है। एक सिंगल वर्ड अगर मैं बोलती हूँ कम, इट इज नॉट अ सेंटेंस। वन वर्ड से कभी भी सेंटेंस नहीं बनता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कम हियर, देन इट इज complete sense, it is giving a complete sense and therefore it is a sentence here, right? Now first point जो हमने सीखा कि sentence क्या होता है, sentence group of words होता है। second point जो हमने सीखा है, क्या सीखा है, what is the other thing that we can tell about Shivansh, the child with the name Shivansh, बेटे can you unmute yourself? Yes, ma'am. बेटे what is the other, पहला point तो हमने ये सीख लिया कि sentence group of words होता है। second point क्या आएगा इसमें, कौन सा group of words? कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होता है शिवांश, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोल सकते हैं बेटा? मैम नो। हाँ जी, तो फिर वो कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए? यस, वेरी गुड विनय, आई कैन सी द आंसर इन द चैट बॉक्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यस शिवांश, आर यू आंसरिंग बेटे? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, यस ऑफ कोर्स मीनिंगफुल, यस। तो पहला पॉइंट है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस बनने के लिए उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, पूरा मीनिंग कन्वे करना चाहिए। सो इट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग पूरा हमें समझ आना चाहिए। ओनली देन उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस में हम ले सकते हैं जिनका मीनिंग पूरा आ रहा है। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंग नहीं, सॉरी सेंटेंस नहीं बनते हैं, राइट? थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू नो? यस अर्णव, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? इसके बाद हमने क्या सीखा? Excuse me, ma'am. Ma'am, a sentence is a group of words that starts with a capital letter and ends with a full stop or question mark. वेरी गुड। सो फर्स्ट पॉइंट था कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरा मीनिंग हमें, जिसका मीनिंग समझ आए, इनसेंसिबल नहीं होना चाहिए। थर्ड है, इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हम जब लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं हम? इट्स पॉइंट, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ऑलराइट, इतना भी रुक के मनकरण, yes बेटे, my next question to you is कि does a sentence always end with a full stop only? No, ma'am. It sometimes ends with a question mark as well. Yes. When you're asking Yes. an interrogative sentence. So mute yourself बेटे. So it always begins with a capital letter and ends with a full stop, अकेला full stop नहीं, और a question mark. क्वेश्चन मार्क से भी एंड होता है ना। अगर मैं किसी में क्वेश्चन पुट कर रही हूँ तो वो वाला सेंटेंस किससे एंड होगा? क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये कैसा होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन? एक स्ट्रेट लाइन एंड देन अ डॉट, राइट? सो हमारा जो सेंटेंस होता है वो या तो फुल स्टॉप के साथ एंड होगा, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा, और अदरवाइज वो किसके साथ एंड हो सकता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम ऐसे लगाते हैं विद अ स्ट्रेट लाइन एंड अ डॉट बिलो इट। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? शुड आई मूव फर्दर? ओके, नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज अ सेंटेंस। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वो हमारे सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंग नहीं दे रहा तो वो सेंटेंस नहीं है। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग भी कंप्लीट है, लेकिन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया, उसके एंड में पंक्चुएशन मार्क नहीं डाला,
Even then it won't be a sentence. Clear to everybody? Now the next thing is sentence स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर मीन्स कोई चीज कैसे बनी है. एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो वो कैसे बनता है. कैन एनीबडी डज एनीबडी नो व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर? राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी नोज कि सेंटेंस कैसे बनता है. हम सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है सेंटेंस लिखते हुए. कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं कोई भी. नोबडी? All right, I'll help you with this. Arnav, you're raising the hand. Are you raising the hand, Arnav? Yes, Arnav. मैम जब भी हम कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं मम्मी जिन चीजों का ध्यान रखती है मैम वो ये है कि मैम सेंटेंस हमें मैम ये ध्यान में रख के बनता है कि मैम को नाउन है कि वर्ब है. Right, okay, fine. Mute yourself, I'll tell you. सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस में कौन सा वर्ड कब आएगा. ठीक है. सो सेंटेंस ऑलवेज फॉर्म्स विद अ सब्जेक्ट, देन इट हैज अ वर्ब एंड देन इट हैज एन ऑब्जेक्ट. तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है. वर्ब मीन्स इट कैन बी एन एक्शन वर्ड, इट कैन बी अ हेल्पिंग वर्ड. कोई भी वर्ब होगा लेकिन वर्ब आएगा और एंड में ऑब्जेक्ट आता है. नाउ कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज अ सब्जेक्ट? यू पीपल हैव डन दिस इन थर्ड क्लास आल्सो. हु विल एक्सप्लेन व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम? हु विल एक्सप्लेन दिस? यस मैम जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. वेट अ मिनट. भूमि, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. यस मैम name is called a subject. It can be a name, but अकेला name ही subject नहीं होता. I want somebody else to answer. Who else? Right, मैम नाउन. Dipansha, unmute yourself. We are talking. Yes, Dipansha. We are talking. I'm not getting you. Ma'am, action words. No, I'll tell you. Mute yourself, everybody. सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट. जैसे मैं बोलती हूँ इफ आई से आई एम स्माइलिंग, ये मेरा सेंटेंस है आई एम स्माइलिंग. तो यहाँ बताओ मुझे किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. मैं आप अपने बारे में. प्लीज somebody mute yourself bete. Please mute yourself. If you want to answer for any question you need to write in the chat box. Vansh and Ritu Dhingra, both of you mute yourself quickly. Okay bete. So यहाँ पे मैं I am smiling यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अपने बारे में बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? I. ठीक है. मैं कहती हूँ Ram is sad. किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे? Whom am I talking about? किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? राम इज सैड. राम के बारे में बात हो रही है. मैं आपको बता रही हूँ कि राम सैड है, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ इस सेंटेंस में? राम के बारे में कर रही हूँ. सो राम इज द सब्जेक्ट हियर. अब आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा. यू हैव डन दिस इन क्लास 3 ऑल्सो. सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में? जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना. तो जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आता है. उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है. ठीक है. चलो हम वही वाला सेंटेंस लेते हैं. Cats drink milk. ठीक है.
तो यहाँ कैट्स ड्रिंक मिल्क, यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कैट्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारा कैट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एस मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है, कैट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे सेंटेंस में आता है वर्ब। वर्ब मतलब वर्ब कोई एक्शन वर्ड भी हो सकता है, या इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे ड्रिंक वर्ड जो है वो क्या है, एक्शन वर्ड है, और वो क्या हो गया हमारा वर्ब। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमारा क्या आया, सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आया, वर्ब, और लास्ट मिल्क, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कोई नाउन, ऑब्जेक्ट कोई थिंग होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी थिंग हो सकती है या कोई पर्सन का नेम हो सकता है, राइट। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस हमेशा कैसे बनता है, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसको बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि वो कैसे बना है ना। आप कोई बिल्डिंग देखते तो बोलते नहीं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, तो वो कैसा बना है, स्ट्रक्चर उसका। तो इसी तरह एक सेंटेंस कैसे बनता है, एक सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। हमने एग्जांपल लिया कैट्स ड्रिंक मिल्क, ये हमारा सब्जेक्ट होगा कैट्स, ड्रिंक हमारा वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मिल्क हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना सबको? आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। राहुल हिट मी, किसके बारे में बात हो रही है? क्विकली राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। राहुल हिट मी, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स क्विकली। Yes, very good. Yes, others can also try at least. Very nice. Yes. राहुल। हमारी बात, don't unmute बेटे, don't unmute. So यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? राहुल. So राहुल here is the subject, right? अब क्या राहुल कोई एक्शन कर रहा है? Is राहुल doing any action? क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे? हिट कर रहा है, वो मार रहा है, ये एक्शन कर रहा है। सो हिट हियर इज द वर्ब, राइट। थर्ड, किसको हिट कर रहा है? मुझे हिट कर रहा है। सो मी हियर इज द ऑब्जेक्ट, राइट। सो दिस सेंटेंस अगेन हैज अ सब्जेक्ट, देन इट हैज अ वर्ब, एंड देन इट हैज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर टू एवरीबडी? So, अब देखते हैं और एग्जाम्पल्स इसके, 1 or 2 एग्जाम्पल्स विल टेक मोर। Please look at the sentence. I hope it is visible to you now. She is happy. इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात करें? Quickly. What is the subject here? She is happy. Yes. यहाँ पे हम एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, और ये शी जो वर्ड है वो गर्ल के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है। ये गर्ल के लिए क्या है? प्रोनाउन है। सो हियर द सब्जेक्ट इज शी। सो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई नाउन, किसी का नेम भी हो सकता है, या वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट, स्टॉप राइटिंग, वेट बेटे, स्टॉप राइटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्ब हियर? इस सेंटेंस में व्हाट इज द वर्ब? Yes, quickly start writing. What is the verb here? No, I'm not getting the answers. Verb क्या है यहाँ पे? Happy is the verb. No. यहाँ पे हमारा verb है is. Is here is the verb. Why? अब listen carefully. Is हमारा verb क्यों है? Is हमारा verb इसलिए है क्योंकि यहाँ पे is एक helping verb है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड नहीं आ रहा, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और वो क्या हो गया हमारा? इज। सो प्लीज स्टॉप लुकिंग इन योर बुक्स हिमांक, प्लीज लुक एट द बोर्ड, एवरीबडी लुक एट द बोर्ड बेटे, यू डोंट हैव टू यूज द बुक राइट नाउ, आई विल टेल यू व्हेन टू ओपन द बुक्स, राइट? ओके, सो कई बार हमारे सेंटेंसेस में एक्शन वर्ड नहीं होता, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वर्ब कोई भी हो सकता है, कोई एक्शन वर्ड भी हो सकता है या कोई हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है।
इस सेंटेंस में वर्ब है हमारा, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन वर्ड नहीं है, बट वर्ब तो है ना ये, वी नीड टू हैव अ वर्ब, वर्ब होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट, क्लियर। एंड लास्ट, हैप्पी, व्हाट इज द वर्ड हैप्पी हियर, व्हाट इज द वर्ब हैप्पी हियर, यस, वेट, ईशानप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हैप्पी वर्ड क्या है। ईशान क्विकली बेटे। Excuse me, ma'am. Emotion. ईशान Emotion did you word. tell the answer? Okay, anybody else? Vinay, can you tell me what is happy here? Happy क्या है? Is it a noun, a verb? What is it? Ma'am, object. It is object. Object जो होता है हमारा हमेशा कोई noun या pronoun होता है, ठीक है। Happy क्या होता है? मैं कह रही हूँ I am happy, तो happy क्या कर रहा है, मुझे describe कर रहा है, it is a describing word. Happy यहाँ पे क्या है, adjective. Happy here is the adjective. So कई बार हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसकी जगह कई बार एडजेक्टिव भी आ जाता है, क्लियर है। मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ ये बताने के लिए दिया था कि कुछ सेंटेंसेस जो है वो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस बन जाता है, बट आपने याद रखना है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बट कई बार ऑब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, इवन देन उसका सेंस पूरा है, ये पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, शी इज हैप्पी, वो खुश है, आपको पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है, therefore it is a proper sentence. Clear to everybody? Now next thing is, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली चीज है ये आप क्वेश्चंस पे नहीं अप्लाई करते। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है तो वहां पे हमारा ये वाला रूल फॉलो नहीं होता। आई विल टेल यू एन एग्जांपल। डू यू हैव अ पेन? मैं किसी से पूछ रही हूँ कि क्या आपके पास पेन है, तो मैं किसी से पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया है। इसको स्टार्ट मैंने कैपिटल लेटर से किया है, लेकिन एंड में मैं यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन है। इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सेंटेंस तो रहेगा, लेकिन वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें एंड में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस जिसमें आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, बता नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं कोई चीज, तो जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो आप क्वेश्चन करते हैं ना उसको। तो अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके एंड में हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और क्वेश्चन मार्क में ये वाला रूल नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क में ये वाला नहीं आता। ये कब होगा यूज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस जब आप कर रहे हो तब ये यूज होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी दिस मच? बेटे ये क्लियर है इतना सबको? क्विकली शो मी थम्स इफ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फाइन, ओके बेटे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू टुडे इज, आपको एक्सरसाइज 1, नाउ यू कैन ओपन योर बुक्स क्विकली, ओपन योर रीडर बुक्स। सौरेश बेटे ओपन योर बुक, ग्रामर बुक्स क्विकली, पेज नंबर 2. Page number 2, you have to do both the exercises given here, exercise 1 and exercise 2. You will do at home. Fine. I'll discuss one sentence from both of them. Please look at first exercise 1. Begin the underlined words. Ma'am, which page? Page number 2. First exercise. Begin with the underlined word. Finish the word that has a full stop after it. ठीक है, ऐसा वर्ड हमने यूज करना है जिसके पीछे फुल स्टॉप दिया होगा, तो हमने दैट मीन्स कि उसको एंड में लेना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। लुक एट द फर्स्ट वन, नेम माय स्कूल ऑफ सेंट पीटर्स इज। तो आपने ये बेसिकली जंबल जिनको आपने अनजंबल करके क्या करना है, वो सेंटेंस बनाना है। सो व्हाट वुड बी योर आंसर? द आंसर वुड बी द नेम ऑफ माय स्कूल इज, the name of my school is St. Peter's School. So this way you have to, what you have to do, you have to unjumble.
इनको प्रॉपर ऑर्डर में लगा के प्रॉपर सेंटेंस बनाना है आपको। क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटे द चाइल्ड विद द नेम मैम पेज नंबर The child with the name Richard Dhingra, this is the last warning to you, bete. You will not unmute yourself. Keep yourself muted, everybody. Hurry up quickly. Gurnaman. Right? Okay. So, next is yes, next thing is home close my is to my school. अब देखो my का already m जो है वो कैपिटल में दिया हुआ है, that means कि आपको इसको सबसे आगे लिखना है. So your sentence would be my school is close to my. मैम प्लीज टेल मी पेज नंबर Page number 2 of the grammar book. Now this way you have to solve the first exercise. Now look at exercise number 2. Again, what has been done here? Arun has a new puppy. The order is correct. It is correctly written. But the thing is, they have not used the punctuation marks. कोई full stop नहीं है, कोई question mark नहीं लगाया, कोई letter capital नहीं लिखा है. So you have to rewrite the sentences. इन sentences को दोबारा लिखना है आप लोगों ने. फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके और एंड पे जो भी सुटेबल है, अगर फुल स्टॉप लगना है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर वो क्वेश्चन है तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. यस, ओके. सो अरुण हैज अ न्यू पपी. यहाँ पे जब उसने उसे रीराइट किया, सो इट हैज रिटन अरुण का ए विल बी कैपिटल एंड देयर वुड बी अ फुल स्टॉप आफ्टर द वर्ड पपी, राइट? सो यू हैव टू रीराइट ऑल दीज सेंटेंसेस. फाइन बेटे?